Hello my dear students, welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun and today I will be teaching you mathematics of class 4th. I will be teaching you chapter number 7 of your textbook and the name of the chapter is geometry. So children, what does this term mean to you? In mathematics, when we study about geometry, it means that we have to study about the lines, shapes, angles or curves, polygons or construction work. इन सब चीजों को मिलाकर बनती है ज्योमेट्री. ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. सो इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास, यू विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. Then you will study about different types of shapes like 2-dimensional, 3-dimensional shapes, then about circle and all that. The details of all these things you are going to study in this chapter. So let's start with the basics of geometry, and that is about a line, line segment, ray, point, all these things. So first one is this point. This is a point, and when we have 2 points and we join those 2 points, then it forms a line segment. This is a line. A line does not have any fixed length because this can be extended further. So this is a line. The next one is a ray. A ray has one fixed point and one extendable point. That means a ray also does not have any fixed length. So these are the basic things that are related to geometry. With the help of these things, you will study the concepts further. So the next one is about the shapes. Okay, there are 2-dimensional shapes and 3-dimensional shapes. Okay, like for example, if I take square. Square is a 2-dimensional shape, and उसी से related 3-dimensional shape is cube. The next is rectangle. Rectangle is a 2-dimensional. 2-dimensional को हम लोग कह सकते हैं plane figures, ठीक है, which can be drawn on a plane of paper. And 3-dimensional shapes are the solid figures, ठीक है, जो 3-dimensional होते हैं. Rectangle का होगा cuboid, ठीक है. इसी तरह circle. Circle का होगा sphere, 3-dimensional. Okay. Triangle, cone. Okay, there are many others like oval भी होता है, इसमें और भी होते हैं like cylinder है, prism है. These are the shapes, different types of 2-dimensional and 3-dimensional shapes. Children, the next topic is about polygons. So what are polygons? They are the closed figures. Okay, first thing कि closed figure होना चाहिए, and the second thing is that they should be formed by using line segments. That means अगर मैंने कुछ इस टाइप का क्लोज फिगर ऐसे कुछ भी बना दिया, so is it a polygon? No, this is not. या फिर अगर मैंने ऐसे कोई कर्व्ड बना दिया, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड क्लोज फिगर बना दिया, is it a polygon? No. So polygon के लिए this is mandatory that they should be formed using line segments. Linear होना चाहिए. Definition की फॉर्म में आप ये जान सकते हैं कि a polygon should be a linear closed figure. Okay? Suppose मैंने एक लाइन ड्रॉ की, then again line segment, then again line segment, then again line segment. So this can be a polygon. Yes, this is closed and it comprises of different line segments. So yes, this is a polygon. So whenever it is asked that what is the minimum number of line segments required for making a polygon, अगर एक polygon आपको बनाना है तो एटलीस्ट आपके पास कितनी line segments होनी चाहिए? The answer is 3. 3 से कम अगर आपके पास line segments हैं तो आप पॉलीगन नहीं बना सकते हैं. ठीक है, सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट से पॉलीगन नहीं बनता है, एटलीस्ट 3 होना चाहिए. सो 3 अगर कभी भी होती है तो व्हाट टाइप ऑफ फिगर वी गेट ट्रायंगल. सो ट्रायंगल इज द 3-sided पॉलीगन. अगर 4 साइड का होता है देन यू कॉल इट एज क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं लाइक स्क्वायर. स्क्वायर इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज 4-sided. The next one is rectangle. This is also a 4-sided polygon. The next one is parallelogram, which you will study further. Rhombus, then trapezium, then kite. These are all the quadrilaterals. Definitely you are going to study these things further in your classes. Just for your knowledge, I have told the names of few quadrilaterals. 5-sided polygon is known as pentagon. 6-sided polygon is known as hexagon.
7-sided polygon is known as heptagon. 8-sided polygon is known as octagon. 9-sided polygon is known as nonagon. And 10-sided polygon is known as decagon. So you need to remember the names as well as the number of line segments they are made up of. कितनी line segments किस polygon में होती हैं और कितने उसको क्या कहा जाता है, what is the name, these all things you need to remember. Now we'll study about net of a cube. What is this net called? In maths, when we talk about this net, it means कि अगर suppose this is a box, okay? This is a cuboidal box, but आपके में cube की है net. अगर मैं इसको पूरा open कर दूँ, यहाँ से मैंने open किया, यहाँ से open किया, उसके बाद नीचे से भी अगर मैं इसको पूरा खोल दूँ, ठीक? तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे एक complete पूरा कार्डबोर्ड का पीस मिल जाएगा, जिससे ये बना हुआ है, ठीक? तो नेट क्या होता है? मैथ्स में जब हम लोग नेट की स्टडी करते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी आपके पास फिगर है, जैसे क्यूब या क्यूबॉइड या सिलेंडर या कोन, इनको अगर देखा जाए कि ये बने कैसे हैं, आपके पास पहले क्या चीज था, क्या मटेरियल था, आपने उसको फोल्ड कर करके इसको फिगर को बना दिया है, ठीक? तो नेट क्या होता है कि अगर ये बन गया है और इसके बाद आप इसको वापस से डीअसेंबल करें तो ये किस तरह का बन के तैयार होगा, उसको कहते हैं नेट, ठीक है? तो अगर आपने देखा होगा एक क्यूब इस तरह का कुछ दिखता है, अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं 2D में ड्रॉ कर रही हूं, तो कुछ इस टाइप का एक क्यूब होता है। और अगर आपको क्यूब की नेट देखनी है कि नेट कैसे बन के तैयार होती है, क्यूब की नेट, तो वो कुछ इस टाइप की दिखती है। देखिए नंबर ऑफ फेसेस आप काउंट करिएगा, इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6, ठीक? 6 फेसेस होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 6 फेसेस बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 एंड 6. दिस इज द नेट ऑफ अ क्यूब, ठीक? तो आपके पास 4 साइडेड, 5 साइडेड और 6 साइडेड क्यूब्स की नेट का आपके सिलेबस में है, ठीक है? फर्दर यू विल स्टडी अबाउट द नेट्स ऑफ वेरियस 3D फिगर्स, बट इस बार सिर्फ आपको क्यूब की नेट्स पढ़नी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्कल. सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स में। जब भी हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं, उसमें सर्कल को हमें अलग से स्टडी करना पड़ता है। सर्कल में क्या क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दैट आई विल टीच यू हियर. दिस इज अ सर्कल, ठीक? ये कैसे बनता है? एक ही क्लोज्ड फिगर है, कर्व्ड क्लोज्ड फिगर। जैसे आपने पॉलीगन्स की स्टडी अलग किया, तो इस वजह से आप कर्व्ड क्लोज्ड फिगर की स्टडी अलग से कर रहे हैं, दैट इज सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके? और ये जो बाहर की जो बाउंड्री है, दिस इज नोन एज द सर्कमफेरेंस. सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज नोन एज द रेडियस, ठीक? और दूसरी एक लाइन होती है रेडियस की जो डबल होती है, दैट जॉइंस a line which joins 2 points of circumference and passes through the center of the circle is known as the diameter. Okay, so let me tell you, diameter is equal to 2 into radius. Radius का डबल होती है diameter और diameter का हाफ होती है radius. Now the next thing is that आपने रेडियस पढ़ लिया, आपने सेंटर पढ़ लिया, आपने डायमीटर पढ़ लिया और आपने सर्कमफेरेंस पढ़ लिया. द नेक्स्ट वन इज कॉर्ड. सपोज यहां से मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट है, सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहा जाता है. तो क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड है? यस, द डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट द स्पेशलिटी ऑफ डायमीटर इज दैट the diameter is the longest chord. It is the only chord which passes through the center of the circle. It is the longest chord. ठीक है? तो जब भी आपको कभी दिया जाएगा रेडियस, आपसे कहा जाएगा डायमीटर निकालो, आप उसका डबल कर देंगे. जब भी आपको डायमीटर दिया होगा रेडियस कहा जाएगा निकालने के लिए, आप उसको हाफ कर देंगे.
The last topic of this chapter is symmetry. That means you have to study about symmetrical shapes and asymmetrical shapes. Symmetry means एक ऐसी line जिससे मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा होता है जिससे अगर कोई क्लोज फिगर को आप या कोई ज्योमेट्रिकल शेप को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. ठीक. सो आई एम शोइंग यू हियर दिस. सी दिस पेज. ये किस शेप का है? दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप. ठीक. अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ, मैंने ऐसे फोल्ड किया, हॉरिजॉन्टली इसको मैंने फोल्ड किया, तो मैंने देखा कि ये बिल्कुल ओवरलैप कर गया. ठीक. तो इसका मतलब ये जो है, ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस रेक्टेंगल. सिमिलरली क्या किसी और तरह से भी ये चीज हो सकती है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? यस. अगर मैं इसको इस टाइप से फोल्ड करती हूँ वर्टिकली. ओके. अगर वर्टिकली भी मैं फोल्ड कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओवरलैप हो गई है. दैट मीन्स कि ये भी इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल देयर आर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो इस तरह से आपको किसी भी अगर फिगर की बनानी, सपोज आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया है, ट्राइंगल में आपको बनानी है, आप इस तरह से बना सकते हैं. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ये है तो इसमें 3 बन जाएंगी लाइन ऑफ सिमेट्री. आइसोसेलेस में सिर्फ 1 बनती है. इसी तरह अगर आपको कोई सपोज पेंटागन दे दिया गया, ये इस टाइप का शेप दे दिया गया, आप इसमें भी बना सकते हैं. इस तरह से आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कुछ और दे दिया गया लाइक दिस, आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कट हो जाए, तो वो होता है सिमेट्रिकल. अगर कोई एक ऐसा आपको फिगर दे दिया गया जो शायद सिमेट्रिकल, जिसमें अगर आपको कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, ठीक, तो वो हो जाएगा. सपोज मैंने इस टाइप का कोई फिगर ले लिया, क्या आप इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दिखा सकते हैं? नहीं. आप इसको किसी भी तरह से कट करिए, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा. दैट मींस दिस टाइप ऑफ शेप इज asymmetrical and these types of shapes are symmetrical in nature. So children, this was it. I have explained you all the topics and all the concepts included in this chapter. I hope you have understood everything. If there is any doubt or any confusion, you can ask me in the live class. I'll explain you out there. And the notes and solutions of this chapter will be provided on School Mitra app. You have to download it from there and complete your work. And do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.